The news, the Janata Dal United will hold its national executive meeting tomorrow in Delhi. The meeting has been convened by party president Lalan Singh amid speculation that he could step down to make way for Nitish Kumar, the Bihar chief minister, to once again take over the reins of the party. Now, amid speculations around the national executive meeting of the Janata Dal United in the national capital, the Bihar chief minister Nitish Kumar has said that tomorrow's meeting is part of the party's tradition and it takes place once a year. Meanwhile, Bihar's Deputy Chief Minister and RJD leader Tejashwi Yadav has rubbished the rumours about the resignation of JDU President Lalan Singh. We have political reactions coming in. Listen in. ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, आपका मैनेजमेंट नियंत्रण में है। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको सेट करते हैं। हमको इस्तीफा पोस्टर आपका ये अध्यक्ष है, आपका पोस्टर इनको हम बोले हैं कि आपका पोस्टर लगा देंगे। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोगों का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। Meanwhile, Union Minister and BJP leader Giriraj Singh said Nitish Kumar will remain the Chief Minister of Bihar for just a few days. Listen in. देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। My colleague Manish Kumar is tracking the latest political developments for us. He joins us live at the moment. Manish, Nitish Kumar has said that tomorrow's meeting is part of the party's tradition and it takes place once a year. In fact, we've just heard Lalan Singh has echoed the same. What are you hearing? Are big changes on the radar? So far, there is no clear signal because this whole confusion is not because of the other party leaders, but it's because neither Chief Minister Nitish Kumar, who is party supremo, or Rajiv Ranjan alias Lalan Singh, who is the party's national president, both of them, neither they are denying nor they are accepting the fact that the party is going to see a makeover or a new president, whether Lalan Singh is going to step down or Nitish Kumar will take over. One thing, Parmeshwar, is very clear that if Nitish Kumar desires to take over, then Lalan Singh is going to, he's not going to waste his time, and in no seconds he is going to offer his resignation. So far he has not offered the resignation because there is nothing of that sort. As of now, they are claiming that there is no such thing on the agenda. But in the next 24 hours, if Chief Minister Nitish Kumar, who is the party supremo, if he desires to take over party presidency, then there is going to be no objection or no resistance from Lalan Singh because both of them are very close, and as of now, nobody knows what is going to exactly happen in tomorrow's national executive. Parmeshwar. As always, Manish, thanks so much for joining us with that live update from Patna. In fact, my colleague Rajiv spoke to KC Tyagi, the Secretary General of the JDU. Here's what he had to say. सर, जेडीयू की जो बैठक जो होने जा रही है, क्या एजेंडा है आज के कल का? लंबे अंतराल के बाद बैठक हो रही है और ऊंचे पैमाने पर चर्चा और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं सारी चर्चा अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। आज शाम 4 बजे पार्टी की पदाधिकारियों की बैठक है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार जी भी दिल्ली आ चुके हैं और इस 2 दिन की बैठक में जनता दल यू और इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया राष्ट्रीय विमर्श बनी है,
उस पर चर्चा होगी। तो सर किन चर्चा और अफवाहों को खारिज कर रहे हैं आप? जो बाजार में है, मतलब क्या बिना आग के धुआं इस तरह फैल रहा है चारों तरफ? कई बार पड़ोस का जो निकला हुआ धुआं है उसको भी दूसरे पड़ोसी के नाम लगा दिया जाता है। इस तरह की भी किदवंतियां समाज में हैं। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के से फिर से कमान आ रही है। मैं सिरे से पहले ही खारिज कर चुका हूं। एक दूसरा, आज के और कल के पार्टी के आंतरिक जो बहस होगी, मुआहिसे होंगे, उस पर सभी प्रेस वालों को अलग से ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन यह भी है कि जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी और उसमें नीतीश कुमार की नाराजगी की बात भी निकल के सामने आई थी, जो तवज्जो देने की बात भी नहीं दी गई थी, इसको लेकर भी चर्चा हो। नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं और वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, और इसको सब लोग स्वीकार करते हैं कि वो बहुत बड़े चमकीला चेहरा हैं। खास तौर से बिहार में जब से सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला है, वो एक देश के सबसे चर्चित नेताओं में बनकर उभरे हैं, जिसका फायदा जनता दल को भी मिलता है और इंडिया गठबंधन को भी। ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि राजद से करीबी हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना की बात सामने आ रही है। मैं पहले ही सारी अफवाहों को विराम दे चुका हूं। पुनः कहना चाहता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब बने रहेंगे, मतलब कोई चर्चा नहीं होगी, नहीं हटाए जाएंगे आपके हिसाब से? ये कोई सरकारी कागजों पे सिग्नेचर करके अंगूठा लगा करके देने के सवाल नहीं होते। जब मैंने 3 बार मना कर दिया आपसे, तो उस पर विश्वास कीजिए।